Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are delighted that you tuned in back to this program. हम आनंदित हैं कि आप फिर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। If you have not been in touch with us, we hope that you will get in touch with us. यदि आपने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है तो हम आशा करते हैं कि आप अवश्य हमें लिखेंगे। We have been going through a series of messages from the book of Acts. हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में से संदेश श्रृंखला में हैं। And in the last message, we saw that in the day of Pentecost, the Holy Spirit came to dwell in the believers. और अपने पिछले संदेश में हमने देखा कि पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्थायी रूप से विश्वासियों में वास करने के लिए आ गया। Some thought that the disciples were drunk, कईयों ने सोचा कि प्रेरित नशे में थे, but others repented and believed. परंतु कईयों ने पश्चाताप किया और विश्वास किया। And that is why the Apostle Peter gets up and boldly proclaims the gospel to the skeptics and the seekers alike. और इसी कारण पत्रस उठकर संदेहियों और खोजियों को समान रूप से खुलेआम सुसमाचार सुनाता है। There are 5 things in Peter's speech here that I want you to notice. यहाँ पत्रस के संबोधन में 5 बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें। And it comes from the book of Acts, chapter 2, verses 14 to 41. ये हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 41 पदों में। First, पहली, there was a confrontation with the skeptics. कि वहां संदेहियों की तरफ से विरोध था। Verses 14 and 15. 14 और 15 पद। Secondly, दूसरा, there was a clarification of the sign. वहां चिन्हों का स्पष्टीकरण था। Verses 16 to 21. 16 से 21 पद। Thirdly, तीसरा, there was a condemnation of sin. वहां पाप का दोष था। Verses 22 to 25. 22 से 25 पद। Fourthly, चौथी बात, there was a confirmation of the scripture. वहां वचन की पुष्टि थी। Verses 26 to 36. 26 से 36 पद। Fifthly, पांचवी बात, there was the consolation of the Spirit. वहां आत्मा का दिलासा था। Verses 37 to 42. 37 से 42 पद। So there was confrontation, clarification, condemnation, confirmation, and consolation. तो वहां पर विरोध था, स्पष्टीकरण था, पाप का दोष था, पुष्टि थी और दिलासा था। First of all, Peter confronts the skeptics. सबसे पहले पत्रस संदेह करने वालों का सामना करता है। When Peter said, "Give heed to my word," जब पत्रस ने कहा मेरे शब्दों पर ध्यान दो, he was expressing boldness and confidence. वो निर्भीकता और आत्मविश्वास प्रकट कर रहा था। He had no hesitation or equivocation. उसे कोई हिचकिचाहट या संदेह नहीं था। He had no fear or apprehension. उसे कोई डर या भय नहीं था। For this is a different Peter from the one who denied the Lord Jesus Christ to a slave girl. क्योंकि ये पत्रस उस पत्रस से भिन्न था जिसने एक दास लड़की के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। This is the Spirit-filled Peter. ये आत्मा भरपूर पत्रस है। The first thing Peter does is to refute their false accusations that they were drunk. सबसे पहले पत्रस उनके इस झूठे दोष को गलत सिद्ध करता है कि वो नशे में हैं। He said, "It is 9 o'clock in the morning. Whoever heard of anyone gets drunk in the morning?" वो कहता है कि इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं, किसने कभी सुना है कि कोई सुबह ही शराबी हो जाता है। Once Peter confronted their silly skepticism, एक बार पत्रस के द्वारा उनके बेवकूफी भरे संदेह का सामना करने के बाद, secondly, he goes on to giving them an explanation of Pentecost. दूसरा वो उन्हें पंतेकुस्त का मतलब बताना शुरू करता है। Verses 16 to 21. 16 से 21 पद। In the Old Testament prophecies, there are 2 comings of the Messiah. पुराने नियम की भविष्यवाणियों में मसीह का 2 बार आगमन बताया गया है। These 2 comings would be separated by a long interim period. इन 2 आगमनों को एक लंबे अंतरिम समय के द्वारा अलग किया जा सकता है। I want to explain this to you. मैं इसे आपके लिए स्पष्ट करना चाहता हूँ। According to Isaiah 53, यशाया 53 अध्याय के अनुसार the first coming of the Messiah would be in suffering and dying for the sins of the world. मसीह का पहला आगमन वो होगा जिसमें वो दुख उठाएगा और संसार के पापों के लिए अपनी जान देगा। And according to Isaiah 9:6, और यशाया 9 अध्याय के 6 पद के अनुसार the second coming of the Messiah will be in great glory to establish his rule forever. मसीह का दूसरा आगमन वो होगा जब वो अपनी बड़ी महिमा के साथ हमेशा के लिए अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा। In his first coming, अपने पहले आगमन में
the Messiah would rule over his believer's heart. मसीह अपने विश्वासी के हृदय पर राज करेगा। In his second coming, अपने दूसरे आगमन में the Messiah would rule supreme. मसीह का ही राज होगा। In his first coming, अपने पहले आगमन में the Messiah establishes peace only in the hearts of his believers. मसीह केवल अपने विश्वासियों के हृदय में ही शांति स्थापित करता है। In his second coming, अपने दूसरे आगमन में the Messiah will establish perfect peace. मसीह उत्तम शांति स्थापित करेगा। In his first coming, अपने पहले आगमन में the Messiah judges his people through the conviction of the Holy Spirit. मसीह अपने लोगों का न्याय पवित्र आत्मा के एहसास के द्वारा करता है। But in his second coming, he will judge all people. परंतु अपने दूसरे आगमन में वो सब लोगों का न्याय करेगा। So Peter gives him clarification of the purpose of the coming of the Holy Spirit. तो पतरस उन्हें पवित्र आत्मा के आने के उद्देश्य का स्पष्टीकरण देता है। The Holy Spirit is given to minister, to rule, convict and consecrate. पवित्र आत्मा दिया जाता है सेवा के लिए, राज्य करने के लिए, दंड देने के लिए और पवित्र करने के लिए। And he does all of that during the period between the first and the second coming of the Messiah. और वो ये सब मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच के समय में कर रहा है। And this was also prophesied in the book of Joel. और योएल की पुस्तक में भी इसकी भविष्यवाणी की गई थी। Peter tells him in verse 21, 21 पद में पतरस उन्हें बताता है, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। There is salvation for those who turn to the Savior. जो उद्धारकर्ता की ओर मुड़ते हैं उनके लिए उद्धार है। And that is why he goes on to give them the first step towards salvation. और इसी कारण वो उन्हें उद्धार की तरफ पहला कदम बताता है। So the first point is confrontation of the skeptic. तो पहली बात है संदेहवादियों का विरोध। Secondly, it was clarification of the sign. दूसरी बात थी चिन्ह का स्पष्टीकरण। Thirdly, the condemnation of sin. तीसरी बात है पाप का दोषी ठहराना। What was these people's sin? इन लोगों का पाप क्या था? The sin was this, उनका पाप ये था that when the Messiah came कि जब मसीह आया and performed miracle after miracle और एक के बाद एक आश्चर्यक्रम किए and showed clear sign that he was their Messiah, और स्पष्ट निशान दिखाए कि वही उनका मसीह था, they did not believe in him. उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। They watched him with amazement as he raised the dead supernaturally. उन्होंने आश्चर्य के साथ उसे अलौकिक रूप से मुर्दों को जिलाते देखा था। They watched him as he healed the sick supernaturally. उन्होंने उसे अलौकिक रूप से बीमारों को चंगा करते देखा। They watched him as he fed the hungry supernaturally. उन्होंने उसे भूखों को अलौकिक रूप से भोजन देते हुए देखा था। And he calmed the storms supernaturally. और उसने अलौकिक रूप से आंधी को शांत किया था। But they refused to believe in him. परंतु उन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार किया। Instead of trusting him with their salvation, अपने उद्धार के लिए उस पर विश्वास करने के बजाय, instead of enthroning him as the Lord of their lives, उसे अपने जीवनों के प्रभु के रूप में सिंहासन पर बिठाने के बजाय they nailed him to a cross. उन्होंने उसे कीलों से क्रूस पर ठोक दिया। Here they were longing for the coming of the Messiah to usher peace, joy and salvation, but when he came, they crucified him. यहाँ वो मसीह के आगमन के लिए तरस रहे थे कि वो आए, उन्हें शांति, आनंद और उद्धार से परिचित कराए, परंतु जब वो आया उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। But isn't that what's happening all around us today? क्या हमारे चारों ओर भी आज यही नहीं हो रहा है? People are longing for the peace of mind. लोग मन की शांति के लिए तरस रहे हैं। They are longing for relief from their guilt. वो अपने अपराध बोध से आराम पाने के लिए तरस रहे हैं। Most people are longing to overcome fear, anxiety and worry. अधिकतर लोग भय, तीव्रता और चिंता पर विजय पाने के लिए तरस रहे हैं। They are longing for true contentment. वो वास्तविक संतुष्टि पाने के लिए तरस रहे हैं। They are longing to know that their sins are forgiven. वो ये जानने के लिए तरस रहे हैं कि उनके पाप क्षमा हो जाएं। And yet when you point them to the only one who can give them all of that, they reject him. और तो भी जब आप उन्हें उसकी तरफ इशारा करें जो उन्हें ये सब दे सकता है, वो उसे अस्वीकार कर देते हैं। They say, don't tell me that he is the only way to heaven. वो कहते हैं मुझे ये ना बताओ कि केवल वो ही स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। Don't tell me that Jesus the Messiah is the only savior for me. मुझे ये ना बताओ कि यीशु जो मसीह है केवल वो ही मेरा उद्धार कर सकता है। The truth is, सच ये है, until this sin is repented of, जब तक इस पाप का पश्चाताप नहीं किया जाता, there can be no salvation
from eternal judgment. तब तक अनंत काल के न्याय से मुक्ति हो ही नहीं सकती। Peter said, you nailed him to a cross. पतरस कहता है, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। My listening friend, I want to ask you a question. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Did those people to whom Peter was speaking actually physically nail Jesus to the cross? क्या उन लोगों ने जिनसे पतरस बात कर रहा था सच में यीशु को शारीरिक रूप से क्रूस पर चढ़ाया था? No. नहीं। But everyone who will not accept Jesus the Messiah as his and her Savior, they might as well be the ones who nailed him to the cross. परंतु प्रत्येक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता या नहीं करती, वो बिल्कुल उन्हीं के समान है जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। Someone may ask, कोई शायद कहेगा, if Jesus was the Messiah, why was he a victim? तो यदि यीशु ही मसीह था तो वो पीड़ित क्यों हुआ? Why didn't he use his power to avoid the cross? उसने क्रूस से बचने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया? In verse 23 of Acts 2, Peter gives us the answer. प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 23 पद में पतरस हमें इसका उत्तर देता है। He was delivered up to die according to a definite plan and foreknowledge of God. उसे परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और निश्चित योजना के अनुसार जान देने के लिए भेजा गया था। So which one is it? तो इनमें से कौन सी बात है? Did people kill him or did God deliver him up? क्या लोगों ने उसे मारा या परमेश्वर ने उसे जान देने के लिए भेजा? The answer is both. उत्तर दोनों है। The sovereignty of God and the responsibility of man. परमेश्वर का प्रभुत्व और मनुष्य की जिम्मेदारी। They are tied together like two sides of a coin. ये दोनों सिक्के के 2 पहलुओं की तरह एक साथ जुड़े हुए हैं। Listen to what Jesus said in Luke 22:22. सुनिए लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 22 पद में यीशु ने क्या कहा? The Son of Man will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays him. मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है। Peter said that the resurrection of the Lord Jesus Christ पतरस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान is all of the proof that anyone would want. वो पूरा प्रमाण है जो कोई जानना चाहे। And that is why without the resurrection of the Lord Jesus Christ, और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बिना his death would have been just another heroic death of a noble martyr. उसकी मृत्यु भी किसी महान शहीद की बहादुरी भरी मृत्यु के समान एक और मृत्यु ही होती। No more and no less. कुछ कम या कुछ ज्यादा नहीं। The greatest proof of Jesus' lordship, यीशु के प्रभुत्व का सबसे बड़ा प्रमाण, the greatest proof of Jesus' messiahship, यीशु के मसीह होने का सबसे बड़ा प्रमाण is his resurrection. उसका पुनरुत्थान है। Not his teaching, उसकी शिक्षा नहीं, not his miracles, उसके आश्चर्यक्रम नहीं, not even his death, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी नहीं, but his resurrection. परंतु उसका पुनरुत्थान। Peter devoted one verse to Jesus' miracles, पतरस ने एक पद यीशु के आश्चर्यकर्मों को समर्पित किया, one verse to his ministries, एक पद उसकी सेवकाई को, one verse to his death, एक पद उसकी मृत्यु को, but 9 verses to his resurrection. परंतु 9 पद उसके पुनरुत्थान को समर्पित करता है। Why did he do this? उसने ऐसा क्यों किया? Because he is proving from the pages of the Old Testament that the resurrection of the Lord Jesus Christ was prophesied 1,000 years before it happened. क्योंकि वो पुराने नियम के पन्नों से ये साबित कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी इसके घटने से 1000 वर्ष पूर्व की गई थी। David prophesied this in Psalm 16 verses 8 to 11. दाऊद ने इसकी भविष्यवाणी भजन संहिता 16 अध्याय के 8 से 11 पदों में की। That Jesus' body in the tomb during those 3 days would never experience corruption. कि कब्र में उन 3 दिनों के दौरान यीशु की देह की बिल्कुल विकृति नहीं होगी। Not only did Jesus rise from the dead, न केवल यीशु मुर्दों में से जी उठा, but he was also exalted to a place of honor, glory and power. परंतु वो आदर, महिमा और शक्ति के स्थान में ऊंचा भी उठाया गया।
Psalm 6 prophesies about Jesus' resurrection. भजन संहिता 6 अध्याय यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करता है, But Psalm 110 prophesies about his ascension and glorification. परंतु भजन संहिता 10 अध्याय उसके उठाए जाने और महिमा पाने की भविष्यवाणी करता है। All were prophesied 1,000 years before it took place. इस सब की भविष्यवाणी इसके घटने से 1000 वर्ष पूर्व की गई थी। What is the implication of all these proofs of the resurrection? इस सब पुनरुत्थान और सबूतों का तात्पर्य क्या है? It means that anyone who rejects the Messiah will be guilty of eternal damnation. इसका अर्थ है कि जो भी मसीह को अस्वीकार करता है वो अनंत काल के श्राप का दंड पाएगा। Now I want to speak about the fifth thing, अब मैं 5वीं बात के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, the consolation of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के दिलासे के बारे में। The most momentous question any man or woman can ask in their life, it would be this. सबसे अधिक गंभीर प्रश्न कोई पुरुष या स्त्री अपने जीवन में यदि पूछना चाहे तो वो ये प्रश्न होगा, What must I do to be saved? मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना आवश्यक है? A wrong answer to that question will be the road to eternal tragedy. इस प्रश्न का गलत उत्तर अनंत काल के दुख में ले जाएगा। No one can be saved until they come to grips with the fact that they are sinners. कोई भी तब तक उद्धार नहीं पा सकता जब तक वो इस तथ्य की पकड़ में नहीं आते कि वो पापी हैं। Why would you need salvation if you are not a sinner? यदि आप पापी नहीं हैं तो आपको उद्धार की क्या आवश्यकता है? On that day, 3,000 people responded to Peter's message. उस दिन 3000 लोगों ने पतरस के संदेश का उत्तर दिया। I want to conclude by telling you a story. मैं आपको एक कहानी बताते हुए समाप्त करना चाहता हूँ। There was a bishop who once called to preach in the court of King Henry VIII in England. एक बार प्रभु के एक बड़े सेवक को इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें के दरबार में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। King Henry VIII was known to chop off people's heads if they disagreed with him. राजा हेनरी 8वां इस बात के लिए प्रसिद्ध था कि यदि लोग उसके साथ असहमत होते तो वो उनके सिर कटवा देता था। As the bishop preached the truth of the gospel, जैसे ही प्रभु के सेवक ने सुसमाचार का सत्य बताया, King Henry VIII did not like what he heard, राजा हेनरी 8वें को जो उसने सुना था वो अच्छा न लगा and he ordered the bishop to preach again next Sunday. और उसने प्रभु के उस दास को आदेश दिया कि वो अगले रविवार को आकर फिर से प्रचार करे and to apologize for what he said. और जो उसने कहा उसकी क्षमा मांगे। But the next Sunday, परंतु अगले रविवार the bishop began by addressing himself. प्रभु के उस दास ने अपने आप को संबोधित करते हुए प्रारंभ किया। Bishop, he said, राजा ने कहा, बिशप, do you know before whom you are speaking this day? तू जानता है कि आज तू किसके सामने बोल रहा है? To the mighty monarch, King Henry VIII, who can take away your life. एक शक्तिशाली सम्राट राजा हेनरी 8वें के सामने जो तुम्हारी जान ले सकता है। Consider well those words you were sent to deliver. उन शब्दों को अच्छी तरह से सोच समझकर बोलना जो बोलने के लिए तुझे भेजा गया है। Words of the great and mighty God who is everywhere present. उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शब्द जो सर्वव्यापक है। He beholds all of your ways and is able to cast your soul into hell. वो तुम्हारे सब मार्गों को देखता और तुम्हारे प्राण को नरक में डाल सकता है। And therefore take care that you deliver your message faithfully. और इसलिए ध्यान रखना कि तू अपना संदेश सच्चाई से सुनाए। Then the bishop preached. फिर प्रभु के सेवक ने प्रचार किया। He repeated the same sermon that he delivered the previous Sunday. उसने वही संदेश दोबारा सुनाया जो उसने पिछले रविवार को सुनाया था। Except he delivered it with more zeal and energy than before. बस इसे पहले से अधिक जोश और हिम्मत के साथ सुनाया। The royal court watched in fear, शाही दरबार भय से देख रहा था, expecting and wondering what would happen to this dauntless preacher. इस आशा और हैरानी से कि इस निडर प्रचारक के साथ क्या होने वाला है। And in a stern voice the king asked the bishop, और कठोर आवाज में राजा ने उस प्रभु के सेवक से पूछा, How dare you to be so outspoken? इतने खुलेपन से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? The bishop humbly replied, प्रभु के उस सेवक ने नम्रता से उत्तर दिया, My first duty, sire, was to God, महाराज मेरी पहली जिम्मेवारी परमेश्वर के प्रति थी and he must be obeyed first and foremost. और सबसे पहले और मुख्य रूप से उसी की आज्ञाकारिता आवश्यक है। The king rose from his seat and walked to the bishop. राजा अपने सिंहासन से उठा और प्रभु के सेवक के पास आया।
and took him by the hand and embraced him and said, और उसका हाथ पकड़ा और गले लगाते हुए कहा, I bless God that I have such honest servant. मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं कि मेरे पास ऐसा विश्वास योग्य सेवक है। Are you a faithful servant of the living God? क्या आप जीवित परमेश्वर के विश्वास योग्य दास हैं? It is my prayer that your answer would be yes. ये मेरी प्रार्थना है कि आपका उत्तर हाँ हो। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।